Hey guys, what's up? This is Abhishek, and today we are going to study significant digits. In the last two lectures, we have studied accuracy, precision, and different types of errors, right? So let's start with significant digits. So, what are significant digits? So, significant digits are the number of digits present, both reliable as well as uncertain, right? So, when I say reliable digits, suppose let's understand it through an example. I have 92.735. In the last lecture, we have also studied the least count error, right? So I can say that 92.73, these are the reliable digits, but this five is the uncertain digit. Why I'm saying this is uncertain digit? Because even though the reading of the meter is suppose 5.7353, but it has taken it to be 50, right? So there is a least count error in this, and because of the least count error, there is a uncertainty in the digit, right? So there comes the concept of significant digits. So when I say significant digit, it means the addition of reliable digits and the first uncertain digits of the number, right? So in this example, 92.735, what is the significant digits here? So these are the four are the reliable digits, plus one is the uncertain digits. So here the total significant digits are 5, right? So basically, when I say uncertainty, then comes the concept of error. And the last lecture we have covered the precision, right? So what is precision? The precision is the closeness of the values of the outcomes, right? So the first point here is significant figures indicates, as already mentioned, the precision of the measurement, which depends on the least count of the measuring instruments, right? हर measuring instrument का एक अपना least count error होता है. उस least count error की वजह से, और आप ये कह सकते हो कि एक लिमिट होती है, उसके नीचे वो नहीं मेजर कर सकता, राइट? सपोज मेरे पास एक फुट स्केल है, राइट? रूलर है, तो उस रूलर में एक उसका लीस्ट काउंट एरर होगा 1 mm का, राइट? इट कैन नॉट मेजर 0.3, सो 1 mm इज अ लीस्ट काउंट एरर, ठीक है? तो उस लीस्ट काउंट एरर की वजह से क्या होता है? अनसर्टेनिटी होती है, एंड दैट अनसर्टेनिटी वी टेक्स इनटू अकाउंट इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो हियर I have taken the example of a pendulum. So the example is, if we say the period of oscillation of a simple pendulum is 1.62 seconds, the digits 1 and 6 are reliable digits, as I already said. यहाँ पर 92.73 क्या था? Reliable digits थे. यहाँ पर 1 and 6 are the reliable digits. And the 2 is a uncertain digit. So I can say the number of significant digits here is 2 are the reliable digits and 1 is the uncertain, that is 3. So here the measured value of has 3 significant figures, right? Now the next thing is, a choice of change of different units does not change the number of significant digits or figures in a measurement. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उसको कोई भी नंबर है, उसको आप मीटर में लिखोगे, मिलीमीटर में लिखोगे, या फिर सेंटीमीटर में लिखोगे, या किलोमीटर में लिख लो, एवरीथिंग हैज अ सेम सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे पास नंबर क्या है? 2.308 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर मेरे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 4. दैट इज 2.30 इज रिलायबल डिजिट एंड 8 इज द अनसर्टेन डिजिट. ठीक है, जब ये कब था? जब मैंने सेंटीमीटर में लिया. द नेक्स्ट थिंग इज, सपोज आई टेक इट इनटू मीटर. जब मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, आई जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10. Sorry, for millimeter, I'll multiply it by 10, so it will be 23.08. अब यहाँ पर भी significant digits कितनी है? 3 plus 1, that is 4. If I convert it into micrometer, suppose this will be 23080, and again here significant digits will be 4 only. मैं बताऊंगा कि ये हमने जीरो क्यों नहीं कंसिडर किया. We will not consider the zero, trailing zero
आफ्टर अ नंबर इफ द डिजिट डोंट हैव अ डेसिमल। यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो वी विल नॉट बी कंसिडर दिस। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ, अगर मैंने मीटर में लिया तो माई आंसर विल बी 0.02308। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 4। वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर जीरो एंड जीरो आफ्टर द पॉइंट। अभी मैं आगे रूल्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि हाउ these significant digits has been calculated, right? This is rule number 1, that is all the non-zero digits are significant. When I say non-zero digits, it means like 93, 78, these are four significant digits. 93.78, this is four significant digits. तो यहाँ पर कहीं भी जीरो नहीं है, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं, राइट? Now the next rule is all the zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is. Right? Suppose करो 0.02308. This is first. तो significant digits यहाँ पे कितनी होंगी? 4. ये 4 significant digits होंगी. We will not be consider these two. अभी हम आगे वाले रूल में पढ़ेंगे कि हमने इसको क्यों कंसिडर नहीं किया. Now if I take 2308, again significant digits is 4. सो व्हाट मैटर्स इज कि जब भी दो नंबर्स के बीच में जीरो आता है तो इट विल ऑलवेज बी कंसिडर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल्स, राइट? डेसिमल है या नहीं है, इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज इफ जीरो फॉल्स बिटवीन टू नंबर्स, उसको हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे, राइट? नाउ रूल नंबर थर्ड इज if the number is less than 1, the zeros on the right side of the decimal but to the left of the first non-zero digits are not significant. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई नंबर 1 से कम होगा तो जो लेफ्ट साइड के जीरो होंगे वी विल नॉट कंसिडर इट, बट ये वाले ये और इसके बाद के जो भी जीरोस होंगे वी विल बी कंसिडरिंग इट, राइट? तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हुए? 4. मैं इसी एग्जांपल में एक एग्जांपल लेता हूँ 23080। अब इस केस में क्या होगा कि ये वाले जीरो वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस जीरो, बट ये जो 4 के बाद ये वाला जीरो है वी विल बी कंसिडरिंग इट। तो यहाँ पर जो मेरी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी दैट विल बी 4+1 दैट इज 5, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट एरर है वो बढ़ गया है, ठीक है? नाउ then fourth rule is the terminal or the trailing zero in a number without a decimal point are not significant. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नॉन डेसिमल डिजिट्स हैं, नॉन डेसिमल मतलब जिसमें डेसिमल है ही नहीं, तो मैं इसको बेशक 2300 ले लूँ, मैं इसको 23,000 ले लूँ, कुछ भी नंबर ले लूँ, 230 ले लूँ, और if I am taking to be 2 3 into 10 to the power 10, any number I am taking, इन चारों का जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 4 ही होगा, सॉरी 2 ही होगा, 23 23 23 एंड 23। जो नॉन डिजिट्स नंबर, नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं उसमें जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो हम कंसिडर नहीं करते, राइट? इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई भी नंबर में डेसिमल नहीं है और नंबर्स के बाद आपका जीरो फॉल कर रहे हैं तो उस जीरो को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करते, राइट? अदर एग्जांपल इज द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है? तो चलो एक चार्ट बना लेते हैं। अगर कोई नंबर नॉन डेसिमल है और अगर कोई नंबर डेसिमल है, तो जो नॉन डेसिमल होगा उसमें क्या करेंगे हम? वी विल नॉट बी कंसिडरिंग द ट्रेलिंग जीरो, trailing zeros will not be considered, but when I take the decimals, trailing zeros will be considered. Trailing zeros will be considered. How? यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 2.340, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? 4, ठीक है? इसमें मेरी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें भी मेरी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बट in this case 1 2 3 4 5 6,
here I will be having 6 significant digits. यानी पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है, it will always be counted. अगर डेसिमल नहीं है, सिंपल नंबर है, प्लेन नंबर है, देन वी विल नॉट कंसिडर द जीरोस. ठीक है, बट जब भी डेसिमल के बाद जीरो आते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होंगे. यहाँ पर मेरी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? Now let's move to the next rules, that is rule number 5. And here the trailing zeros in a number with the decimal points are significant. वही जो हमने पहले पढ़ा था, रूल इज सेम कि जो भी ट्रेलिंग जीरोस होंगे यहाँ पर कितने होंगे? 4. ठीक है, यहाँ पर कितने होंगे? 4. एंड here it is 4, राइट? तो इट मीन्स लाइक अगर 23.70500, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? 1 2, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लग चुका है तो पॉइंट के बाद के जीरोस को हम कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे? सॉरी, 7. ठीक है. Next rule is, for a number greater than 1 without any decimal, the trailing zeros are not significant. Again, repetition of the previous rule, that 235000. यहाँ पर क्योंकि कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी डेसिमल नहीं है, तो only these number will be considered for significant digits, and here significant digits would be 3 only, right? For a number with decimal, the trailing zeros are significant. Again, the previous rule, अगर 0.075000, in this case this zero will not be considered, but decimal point के बाद के zeros will be considered for significant digits. 1 2 3 4 5 6. So here significant digits would be 6. Hopefully आपको समझ आ गया होगा ये, right? Now next move to the different arithmetic operations in significant digits. जब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक ऑपरेशंस? लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, राइट? उस केस में हाउ द वैल्यूज चेंज. अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब क्या होता है? प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो जब भी ये मैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई करूंगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो लेट्स स्टडी. द फर्स्ट केस इज व्हेन आई एम डूइंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन. जब मैंने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया उस केस में क्या होगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जांपल, राइट? सो फर्स्ट लेट्स रीड द रूल. इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, the final results should retain as many decimal places as are there in a number with the least decimal points or places. सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 23 प्लस 5 को अगर आप 0.001 प्लस कर रहे हो, तो दिस विल गिव यू 23.501, राइट? पर जब भी आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखोगे इसको, तो आपको ये लिखना पड़ेगा 23.5 ओनली, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ओनली, क्योंकि इसका जो लीस्ट नंबर है जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो 3 है. इसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है? इसका भी 3 है, तो आप 3 से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते. ठीक है, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. In practice, find the quantity with the fewest digits to the right of the decimal point. तो जैसे यहाँ पे 3 था, वैसे ही हमें राइट साइड में देखना है कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. The number is 11.1. So what I am doing is I have added these three number. यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? 4 है. यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? 3. एंड यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? 3. सो आइडियली जब मैं इसको कैलकुलेटर से ऐड करूंगा, सपोज करो मेरे पास वैल्यू आई 25.299. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैलसी और कैलकुलेटर. बट व्हेन आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आई कैन ओनली राइट द 3 डिजिट्स, बिकॉज इस पूरे इन 3 नंबर्स में जिसकी सबसे ज़्यादा कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो है 3. तो मैं इसको 3 प्लेसेस तक ही लिख सकता हूँ. तो मैक्सिमम आई कैन राइट एज अ 22.299, जिसको मैं राउंड ऑफ करके क्या लिखता हूँ? इफ आई एम राउंडेड अप, आई विल राइट 3. So this is my significant digits के आंसर.
right? Now, the next rule is multiplication and division. So again, the same rule as we have started in the addition and subtraction, right? So here what happens if I multiply 27.2 into 15.63 and I divide the whole number by 1.86846, I got the value. जब मैं इसको कैलकुलेटर में अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, राइट? एंड दिस इज अगेन वेरी ह्यूज नंबर। बट यहाँ पर मेरा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो कितनी है? इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें 3 है। तो आई कैन राइट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो आई कैन राइट ओनली 230, राइट? क्योंकि मुझे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर को लिखना है, तो आंसर विल बी 230 ओनली। अगर मैं इसको 4 प्लेसेस तक लिखना होता, आई कुड हैव रिटन इट 230.3, राइट? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। Now, let's study the rounding off of the uncertain digits. So, understand it through an example. And the example is, let's take 1.7295. और इसको मुझे I have to write in only 3 significant digits. तो मैं इसको क्या करूँगा? I'll round it up. I will round it up. तो I will write it here 1.73। मैंने इसको 0.5 की ऊपर की जो भी डिजिट्स होती है मैं उसको राउंड अप कर देता हूँ, और 0.5 या 5 से नीचे की डिजिट्स होती है उसको मैं राउंड डाउन। ठीक है ना? राउंड अप एंड राउंड डाउन। तो दिस इज द रूल फॉर राउंड डाउन एंड दिस इज द रूल फॉर राउंड अप। यानी अगर कोई भी डिजिट्स 5 से नीचे है तो मैं उस नंबर को -1 कर दूंगा, और अगर कोई भी डिजिट 5 से ऊपर है तो आई विल एड 1। अब सपोज टेक एन एग्जांपल 1.723। यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इफ आई हैव टू राइट दिस नंबर इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, व्हाट वुड आई राइट? 1.72, राइट? क्योंकि जो 3 है, ये 3 क्या है? 3 इज लेस देन 5 here. So as per this rule, if the number is less than 5, I will subtract by -1. तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 करा है। ठीक है? And let's study the case of round up. In the round up, what I do is add 1. So suppose in the same example 729, and I'll have to write it in 3 significant digits. उस केस में मैं क्या करूँगा? I'll add, क्योंकि ये जो 9 है, अब मुझे तो थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो देखनी पड़ेगी। ये जो 9 है, दिस इज ग्रेटर देन 5, so I will add 1 in the whole and I will write it as 1.73, right? Let's do some other examples. अब मुझे ये देखना होता है कि मुझे कौन से प्लेसेस पे राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है। So suppose in this example I have to round it to the thousand. तो 1000 means 4 digits. तो 1 2 3 4। अब 4 के बाद जो फिफ्थ डिजिट है वो 5 से ऊपर है, 6, तो आई विल राइट इट हेयर 2, तो 3.142। अनदर एग्जांपल 1.23735 राउंडेड टू टेंथ, मतलब मुझे टेंथ मतलब 2 प्लेसेस, तो 2 प्लेसेस पे चाहिए मुझे, तो फर्स्ट प्लेस इज दिस। नाउ इन द सेकंड प्लेस it is 2, but the number next to the 2 is 7, and this 7 is more than 5, so I will add 1 to the 2, this will be 3. In the next case 1.2735, I'll have to round it up into 3 decimal places, so this 2, 1.2 is fixed. Now 7 3, so after the number after 7 is less than 5, this 3 is less than 5, so I'll keep it as it is. So this will be my just a minute, 3 decimal places. Here I have written 3 decimal places, so it would be like I will be considering this for rounding up, right? So this will be 3, this will be 4, because this number is 5, and when I take 5, then it will be added by 1. Now if I have to round up into 10 places, I can simply write it as 130, because it has only 2
significant digits, right? Now this is the last example I'm considering. Suppose I have this number. मेरे पास एक नंबर है 0.0560. तो इस केस में what I do, first of all, for the significant digits, अगर मुझे significant digits का काउंट करना है तो मैं इन दो नंबर्स को काउंट नहीं करूंगा significant digits में. इसमें मेरी significant digits कितनी है? How many significant digits? It is 3.560. First thing. So here I am not considering this as significant digits. I am not considering this 0 as significant digits because numbers left to, sorry, the 0 left to the number after decimal places will not be considered. तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये मेरी सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये मेरी थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट है. अगर इसके आगे ज़ीरो लिखा होता तो हम उसको भी कंसिडर करते, बट यहाँ के ज़ीरोस को हमने कंसिडर नहीं किया. होपफुली आपको सिग्निफिकेंट डिजिट समझ आ गया होगा. सो थैंक्स अ लॉट. Please subscribe this channel and like the video. Thank you guys.